Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. CAT is the mother of all management entrance examinations and logical reasoning is one of the important area from which the questions are asked. So today I am going to take some advanced level problems in the linear arrangement in the second part of the linear arrangement. In the first part I explained some basic concepts as well as some problems whose level was comparatively low. What I am going to take today in comparison to that. So today आज के जो मेरे प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम से. तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. देयर इज ए ग्रुप ऑफ 7 persons A B C D E F G having 4 males 3 females and 2 married couples in the group. These are seated in a row on bench. Their professions are doctor, teacher, engineer, psychologist, CA, architect and student. The engineer is married to teacher who is the least intelligent in the group. B is not married and another person, the psychologist, is most intelligent. D is architect. He is sitting at the leftmost corner. The student is sitting at rightmost corner. A is doctor sitting at odd position. The doctor is married to C, who is second most intelligent, followed by her husband. The psychologist is female, but neither A nor G is female. There are as many more intelligent than engineer as less. The least intelligent person is sitting on the immediate right of D, followed by the most intelligent. On the bench followed by D, there are 3 females sitting in succession. The student is more intelligent than architect, who is more intelligent than only one person, F. Guys, a lot of information is given in this question and there are many things which are to be studied, compiled and we give the answer of everything. कौन बंदा कहाँ बैठा है, उसका क्या प्रोफेशन है, वो मेल है या फीमेल है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, यदि वो मैरिड है तो उसकी मैरिज किसके साथ हुई है और उसका इंटेलिजेंस रैंकिंग क्या है. ये सारी चीज़ें हमको एक ही टेबल के अंदर अरेंज करना है. सो दिस इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पर हमको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा हमको फास्ट भी चलना पड़ेगा क्योंकि कम टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें हमको मैनेज करना रहती है. इज दैट क्लियर गाइज? चलिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक टेबल जिसके अंदर हम ये सब चीज़ें फिल करने का ट्राई करेंगे. तो मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर नेम ऑफ पर्सन सबसे ऊपर लिख देंगे, देन हिज प्रोफेशन, देन इंटेलिजेंस, रैंकिंग एंड मैरिटल स्टेटस. अब अपन एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और ट्राई करते जाएंगे इनको कहाँ अपन फिल करें. इज दैट क्लियर गाइज? नाउ द फर्स्ट वन इज प्रोफेशंस दे रखे हैं, ठीक है. नाम का भी मुझे पता नहीं किसको कहाँ लिखना है, छोड़ दो. सेकंड पॉइंट, द इंजीनियर इज मैरिड टू टीचर हु इज द लीस्ट इंटेलिजेंट इन द ग्रुप. तो ये चीज नोट करते जाइए. इंजीनियर किससे हुई इसकी मैरिज? टीचर से. हु इज लीस्ट इंटेलिजेंट, तो रैंकिंग यदि मैं 1 से 7 तक दे दूं तो 7 रैंक किसकी हो गई? इंटेलिजेंस रैंकिंग 7 पर्सन है तो 1 से 7 तक तो 7 रैंकिंग इसकी हो गई. ये मेरा स्पाउस रिलेशन मैंने शो कर दिया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, B is not married and another person, the psychologist, is most intelligent. इसको भी लिख लो. B is not married, B is unmarried, UM लिख देता हूँ. and another person psychologist, इसका मतलब B psychologist नहीं है. B is not psychologist and psychologist is most intelligent, यानी psychologist जो है उसका इंटेलिजेंस रैंकिंग 1 है. Is that clear? B is not married and another person, the psychologist, is most intelligent. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए. D is architect. He is sitting at the leftmost corner. ये मैंने पहले से टिक किया क्योंकि ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास. D is architect. He is sitting at the leftmost corner. तो इसको तो आप फिल कर ही दो. नेम क्या है इसका? D. प्रोफेशन क्या है? आर्किटेक्ट. और ये कहाँ है? लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन,
डी आर्किटेक्ट सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर. फिफ्थ पॉइंट, द स्टूडेंट इज सिटिंग एट राइट मोस्ट कॉर्नर. ए इज डॉक्टर सिटिंग एट ऑड पोजिशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट राइट मोस्ट कॉर्नर, तो यहां पर स्टूडेंट कर देता हूं. डॉक्टर ए है, डॉक्टर जो है बंदा उसका नाम है ए. इज दैट क्लियर? एंड सिटिंग एट ऑड पोजिशन, तो डॉक्टर का पोजीशन या तो 1 है या 3 है या 5 है या 7 है. 1 और 7 हो नहीं सकता. 1 पे आर्किटेक्ट बैठा है, 7 पे स्टूडेंट बैठा है. 1 3 5 7, तो पक्का हो गया डॉक्टर या तो 3rd पोजीशन पे है या 5th पोजीशन पे है. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं. 5th पॉइंट के बाद ये 6th हो गया था. द डॉक्टर इज डॉक्टर एंड सिटिंग एट ऑड पोजीशन. सॉरी 5th तक हम आ गए थे. इसके बाद हम आते हैं 6th पॉइंट पर. द डॉक्टर इज मैरिड टू सी हु इज सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट फॉलोड बाय हर हस्बैंड. द साइकोलॉजिस्ट इज फीमेल बट नाइदर ए नॉर जी इज फीमेल. चलिए एक एक करके करते जाते हैं अपन. सबसे पहले डॉक्टर इज मैरिड टू सी हु इज सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट फॉलोड बाय हर हस्बैंड. तो डॉक्टर की शादी सी से हुई जो कि सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट है, मतलब इसका इंटेलिजेंस रैंकिंग है मेरा 2. फॉलोड बाय हर हस्बैंड, मतलब ये फीमेल है तो ये मेल है. और फॉलोड बाय का मतलब इसके जस्ट बाद रैंकिंग इसके हस्बैंड की ही आती है. 3 रैंकिंग इसको हो गई. इनके बीच में स्पाउस रिलेशन हो गया. इज दैट क्लियर? तो ये एक एक चीज हम स्टडी करते जाते हैं. अगला पॉइंट हमारा ये था द साइकोलॉजिस्ट. इसी के अंदर 6th पॉइंट में द साइकोलॉजिस्ट इज फीमेल बट नाइदर ए नॉर जी इज फीमेल. साइकोलॉजिस्ट फीमेल है तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो फीमेल है. इसके ऊपर ऐसा बना दो फीमेल है. नाइदर ए नॉर जी इज फीमेल, तो ए और जी ये दोनों मेल हैं तो इसके ऊपर ऐसा बना दिया मैंने. इज दैट क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर एज मेनी मोर इंटेलिजेंट देन इंजीनियर एज लेस. इंजीनियर से जितने लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है उतने ही कम इंटेलिजेंट है. इसका मतलब इंजीनियर का इंटेलिजेंस रैंकिंग करेक्ट मिडिल में आएगा, यानी कि इंजीनियर का इंटेलिजेंस रैंकिंग 4 हो गया. तो इंजीनियर के नीचे ये रैंकिंग में मैं 4 कर देता हूं. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. Eighth point, the least intelligent person is sitting on the immediate right of D followed by the most intelligent. Okay, जो सबसे कम इंटेलिजेंट है वो कहाँ है? इमीडिएट राइट ऑफ D followed by most intelligent. ठीक है, तो लीस्ट इंटेलिजेंट इमीडिएट राइट में D के, तो लीस्ट इंटेलिजेंट तो ये है टीचर, तो ये 7 रैंकिंग यहाँ दे देता हूँ, प्रोफेशन यहाँ दे देता हूँ. और फॉलोड बाय मोस्ट इंटेलिजेंट, तो फॉलोड बाय मोस्ट इंटेलिजेंट यानी कि इसकी रैंकिंग 1, इसके जस्ट बाद जो है यहाँ पर. और 1 रैंकिंग किसकी थी गाइस? ये लिखा है मैंने साइकोलॉजिस्ट की, तो यहाँ पर 1 रैंकिंग है साइकोलॉजिस्ट की. इज दैट क्लियर गाइस? हर चीज फटाफट लिखते जाओ, कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी. बी जो है बंदा अनमैरिड है और ये साइकोलॉजिस्ट बी नहीं है, तो जहाँ साइकोलॉजिस्ट लिखा हुआ बी लिख के कट मार दो कि ये बी नहीं है बंदा. ये छोटी छोटी चीजें आपको फटाफट हेल्प करती जाएंगी. और आगे पढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर दिया है ऑन द बेंच फॉलोड बाय डी देयर आर 3 फीमेल सिटिंग इन सक्सेशन. ठीक है भाई, तो ये डी के बाद कंटिन्यूअसली 3 फीमेल है, तो ये फीमेल है जो भी है, ये जो भी है ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, 3 फीमेल है. अच्छा, स्टोरी के अंदर देखो क्वेश्चन में दिया है देयर आर 3 फीमेल. देखो आप 4 मेल है और 3 फीमेल है और 2 मैरिड कपल्स हैं ग्रुप के अंदर. तो यहाँ पर देखो फीमेल मेरी 3 है और तो बच्चे कुछ सारे मेल हैं. इसका मतलब ये जो आर्किटेक्ट है ये मेल है, यहाँ जो भी बंदे हैं ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए और पढ़ते हैं और क्या दिया है क्वेश्चन में. 10th point, the student is more intelligent than architect who is more intelligent than only one person F. स्टूडेंट किससे ज्यादा इंटेलिजेंट है? आर्किटेक्ट से. Who is more intelligent than only one person F. तो जो आर्किटेक्ट है वो सिर्फ एक ही बंदे से ज्यादा इंटेलिजेंट है
और वो है F। इसका मतलब ये हुआ कि आर्किटेक्ट की जो रैंकिंग है वो 6 होगी, तभी तो अपन बोल पाएंगे वो सिर्फ एक ही से ज़्यादा इंटेलिजेंट है 7 वाले से। इज दैट क्लियर? तो अपन ये चीज़ भी नोट कर लो। तो इसका मतलब आर्किटेक्ट की रैंकिंग 6 है और वो सिर्फ एक ही बंदे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है जिसकी रैंकिंग 7 है, और वो बंदा F है, क्वेश्चन में बोला है। तो गाइज मैं यहाँ पर F लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, और ये भी याद रखना कि स्टूडेंट की रैंकिंग आर्किटेक्ट से ज़्यादा है, मतलब बेटर है वो इंटेलिजेंसी के मामले में। ये अपन इसको भी यूज़ करना अपने को। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन और देखते हैं भी रैंकिंग कहाँ पर क्या क्या आ सकता है गाइस। चलिए अब देखो, टीचर की रैंकिंग 7 है और टीचर की शादी इंजीनियर से हुई और टीचर फीमेल है। देखो आप, ये रहा फीमेल, ये जो भी ये बंदा है फीमेल है। टीचर फीमेल है, इसका मतलब पक्का हो गया कि जो इंजीनियर है वो मेल है। अच्छा, डॉक्टर कौन सी पोजीशन पे है? या तो 3rd पे है या 5th पे है। पोजीशन तो 1 2 3, यहाँ तो फीमेल है, डॉक्टर तो मेल है, यहाँ डॉक्टर आ नहीं सकता, तो यहाँ पर पक्के से डॉक्टर है। इज दैट क्लियर गाइज? अब बचे ये 2 मेल, उसमें से एक स्टूडेंट है और ये इंजीनियर भी तो मेल है, तो इंजीनियर कहाँ आएगा गाइज? तो यहाँ इंजीनियर आएगा पक्के से। अच्छा, इंजीनियर की रैंकिंग अपने को पता है, ये रहा 4, तो इंजीनियर के नीचे इंटेलिजेंस रैंकिंग में क्या लिख देंगे अपन? 4 लिख देंगे गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन क्या क्या। ओ माय गॉड, डॉक्टर की रैंकिंग पता अपने को 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। और डॉक्टर की वाइफ जो है C, उसकी रैंकिंग है 2। अब डॉक्टर की वाइफ यानी फीमेल, फीमेल में से ये 3 है, फीमेल 3 ही थे, जिसमें से ये 2 रैंक तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 2 रैंक वाली फीमेल यही तो होगी C, तो इसका यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं C। इज दैट क्लियर गाइस? देखो कितना ब्यूटीफुली हर चीज आती जा रही है। अब आप देखो 1 2 3 4 6 और 7, तो 5 भी बचा, तो 5 रैंक यहाँ आएगा, वो तो अपने आप आएगा क्योंकि स्टूडेंट का रैंक इससे तो ज्यादा ही था। इज दैट क्लियर? तो अब अपन एक नजर मैरिटल स्टेटस पे भी डाल लेते हैं, कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है। यस नो गाइस? चलिए अब अपन देखते हैं कि इंजीनियर की शादी किससे हुई थी? टीचर से। तो इसका मतलब इंजीनियर मैरिड, टीचर ये रहा मैरिड। चलो, डॉक्टर की शादी किससे हुई थी? C से, इसका मतलब डॉक्टर मैरिड, C मैरिड, 4 लोग मैरिड है, 2 ही कपल है तो 4 लोग हो गए मैरिड। अब ये अनमैरिड का U लगा देता हूं मैं, ये अनमैरिड, ये भी अनमैरिड। कितने लोग अनमैरिड है? 3 लोग अनमैरिड है। क्वेश्चन में दिया B अनमैरिड है और B साइकोलॉजिस्ट नहीं है, तो अनमैरिड यहाँ B आ नहीं सकता, यहाँ तो D बैठा हुआ है। अनमैरिड यहाँ B पहले ही कटा हुआ है, यहाँ नहीं आएगा। फिर अनमैरिड और कहाँ है उनका, ये रहा, तो पक्का हो गया कि यहाँ पर B आएगा। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा, समझ आती जा रही है हर चीज। तो B अनमैरिड है तो यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C आ गया, ये साइकोलॉजिस्ट हो गया, ये F हो गया। सॉरी, यहाँ पर डॉक्टर यहाँ लिख देता हूँ और इंजीनियर यहाँ, प्रोफेशन तो यहाँ लिख रहे हैं ना गाइस। ओके, और डॉक्टर का नाम क्या था? A, ये रहा, तो यहाँ पर मेरा A आ गया। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन में ये भी दिया A और G मेल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि G भी मेल है और यहाँ B आएगा नहीं। अब 2 ही खाली पड़े, तो ये वाला और एक ये वाला। B तो खैर यहाँ आएगा नहीं, और ये D हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, B हो गया, 2 खाने खाली पड़े। किस किस के? एक G के और एक F के। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E बचा एक, तो E, फिर F और एक G, सॉरी एक E और G है, 2 बचे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं G यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि G तो मेल है, तो G मेरा ये हो जाएगा इंजीनियर। इज दैट क्लियर गाइज? तो मेरा ये बचा अब E। चलो सब हो गया, अब बचा ही कौन? एक प्रोफेशन यहाँ बचा, तो वो C ही तो बचा, और क्या। इसका मतलब डॉक्टर की शादी जिससे हुई, वो ये दोनों थे ना कपल, ये 2 रैंक थी इसकी, तो डॉक्टर की शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई। इज दैट क्लियर? इंजीनियर की शादी टीचर से हुई, ये दोनों का एक कपल था। तो ये मेरे को हर चीज पता चल गई टेबल के अंदर। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर गाइज?
7 friends A to G sit on a bench, not necessarily in the same order. Some are facing north and some are facing south. No two are adjacent. Persons are sitting in. No two adjacent persons are sitting in the same direction. कोई भी दो एडजेसेंट पर्सन पास पास जो बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है. इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन यहां पर क्या करें, ये इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं और इनको नोट करते जाते हैं. ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. टोटल कितने पर्सन्स की स्टोरी? 7 की. तो 1 2 3 4 5 6 7. ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. हु फेसेस नॉर्थ? कौन? डी. तो डी का तो पक्के से पता चल गया नॉर्थ फेसिंग है. बट नाइदर ऑफ देम सिट एट एनी एंड. ए और डी में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, मतलब ए और डी इस एंड पे भी नहीं आएंगे, इस एंड पे भी नहीं आएंगे. ठीक है. और ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी. तो डी के आगे 2 छोड़ के फिर ए बैठा है और डी की फेसिंग नॉर्थ ये भी बोल ही रखा है. तो डी यहाँ आ नहीं सकता, ए आ नहीं आ सकता दोनों कॉर्नर पे. तो मैं डी को यदि यहाँ कर देता हूँ, इसकी फेसिंग है मेरी नॉर्थ, तो मेरा ए आ जाएगा यहाँ पर. इज दैट क्लियर गाइस? एक दूसरा केस और बना लेते हैं. यदि मैं डी को यहां नहीं करके यहां कर देता हूं, इसकी फेसिंग है नॉर्थ, तो ए कहां करना पड़ेगा मेरे को? यहां करना पड़ेगा. 2 छोड़ के है, सॉरी, ए को यहां करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब अपन इनके डायरेक्शन को भी ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बोला है कि नो टू एडजेसेंट पर्सन्स आर सिटिंग इन सेम डायरेक्शन. मतलब डी का डायरेक्शन उधर है, तो यहां जो भी बंदा होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा. यहाँ जो भी बंदा होगा इसका उधर है तो इसका इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन उधर होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो इसका डायरेक्शन मेरा उधर होगा, तो इसका डायरेक्शन मेरा इधर होगा. इज दैट क्लियर गाइस? अब डी का डायरेक्शन ऊपर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन मेरा ऊपर होगा, और ये ऊपर है तो यहाँ डायरेक्शन जिसका भी होगा वो ऐसे होगा. यहाँ डायरेक्शन ऊपर होगा, यहाँ डायरेक्शन मेरा नीचे की साइड होगा, और यहाँ डायरेक्शन मेरा ऊपर की साइड होगा. इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जस्ट अ मिनट. अब अपन और पढ़ते जाते हैं पॉइंट्स. क्वेश्चन में बोला है 3 पर्सन्स सिट बिटवीन डी एंड जी. डी और जी के बीच में 3 पर्सन है. तो यदि डी यहाँ है तो जी इधर तो कहीं आ नहीं सकता, तो 1 2 3 छोड़ के जी को यहाँ आना ही आना है. और डी में यहाँ लेता हूं तो इधर आ नहीं सकता जी, तो इधर 1 2 3 छोड़ के जी को यहाँ आना ही आना है. इतना क्लियर हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट मेरा कवर हो गया, थर्ड पॉइंट मेरा कवर हो गया. बचे हुए जो कुछ मेरे को लाना है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पॉइंट से मेरे को लाना पड़ेंगे. ठीक है. एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज नॉट एडजेसेंट टू बी. ओके, बी तो वैसे भी अभी कहीं लिखा नहीं है अपन ने, तो केवल अपन इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई. तो ई को कहां कहां अपन लिख सकते हैं? सबसे पहले अपन उनको चेक कर लो जिनके एरो उस साइड है, नॉर्थ साइड है. ये तो नहीं है, ये वाला. क्या मैं यहां ई को ले सकता हूं? यदि मैं ई को लेऊंगा तो सेकंड लेफ्ट में जगह खाली नहीं, मेरे पास डी बैठा हुआ है, तो मैं यहां तो ले नहीं सकता. क्लियर? ई को मैं और कहां लेऊंगा? इधर नॉर्थ एरो तो इधर कहीं बचा ही नहीं मेरे पास. इज दैट क्लियर गाइस? चलो अब मैं इधर वाला एरो देख लेता हूं. ई को मैं यदि यहां लेता हूं तो मैं एफ कहां ले सकता हूं? यहां पर, क्योंकि जिसका फेसिंग इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, अपना जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा. यस नो? अब इधर फेसिंग यदि मैं लेता हूं, ये वाला यदि मैं लेता हूं, जस्ट अ मिनट. यस गाइस, अब यदि मैं ये वाला लेता हूं इधर फेसिंग वाला, तो इसके राइट में एक छोड़ के ये जगह खाली नहीं है बस, और तो मेरा कुछ बचा नहीं है केस. तो पक्का हो गया कि मेरे को ई कहां लेना पड़ेगा. एक बार अच्छे से आप देख लो, इस चीज को समझ लो
ई मेरे को यहाँ लेना ही पड़ेगा और एफ मेरे को फिर यहाँ लेना ही पड़ेगा। ई यदि मैं यहाँ ले लेता हूँ तो एफ मेरे को यहाँ लेना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? और यही चीज मैं यदि यहां सोच के देख लेता हूं तो पहले इधर नॉर्थ वाले एरो देख लेते हैं। तो ई के एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहां ई में ले नहीं सकता, यहां ई ले नहीं सकता क्योंकि ये सेकंड लेफ्ट में मेरा खाली नहीं है। इधर वाले एरो में देखता हूं तो यदि मैं यहां ले लेता हूं ई को तो इधर मेरा एफ आ जाएगा, और यहाँ ई ले लेता हूँ तो यहाँ एफ के लिए जगह खाली नहीं है मेरे पास। तो पक्का हो गया गाइज, मेरे को यहाँ ई लेना पड़ेगा और यहाँ पर एफ लेना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर एफ लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब बचे कौन कौन? अब बचे कौन कौन? नीचे वाले इस लाइन में तो ए आ गया, जी आ गया, डी, एफ और ई आ गया। अब बचे कौन? एक तो बी और एक सी बचा है। और क्वेश्चन में ये दिया है कि ई के पास में, ई हु इज नॉट एडजेसेंट टू बी, ई बी के पास में नहीं है, तो ई के पास में मैं बी नहीं दे सकता, तो यहाँ सी मेरे को देना ही पड़ेगा, तो मेरा बी ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और यहाँ ई के पास में बी और सी वैसे भी नहीं आ रहा कोई, तो बी और सी इन्हीं जगह में से लेना पड़ेगा। तो यदि बी को यहाँ करते हो तो सी यहाँ आ जाएगा, और यदि सी को यहाँ करते हो तो बी यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अपन इनको इंटरचेंज करके एक सीक्वेंस और बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो यूनिक हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें ये मेरा ई, ये मेरा डी, ये मेरा एफ और ये मैं सी कर देता हूँ, ये मेरा ए, ये जी और यहाँ मैं बी कर देता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? डायरेक्शन वही रहेंगे मेरे, इधर 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 इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर। स्पीडली करना चाहो तो वहां भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके, यहाँ बी सी, यहाँ सी बी। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से ये चीज मैनेज हो जाती है। आगे बढ़े, चलिए। अब ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये मैंने सिर्फ बताया कि सीक्वेंस आ गई। अब क्वेश्चन पूछने वाला आपको कैसे भी पूछे, आपके पास ये सीक्वेंस है तो आपको आंसर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जांपल यदि आपको ये बोले कि कौन सा बंदा राइट एंड पे बैठा है, तो यूनिकली तो नहीं बोल सकता मैं, यहाँ सी है, जी है, बी है। कौन सा लेफ्ट एंड पे बैठा है, ई, सी, ई, तो यहां पर अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर गाइज? इन 7 लोगों में कौन बंदा मिडिल में बैठा है, तो ये बी, यहाँ एफ है, यहाँ सी है, ऐसा। तो ये इनके आंसर नहीं आ पाएंगे। हाँ, कौन किसके लेफ्ट में, राइट में, ऐसी चीजों के आंसर आ सकते हैं। उसमें भी कई आंसर ऐसे भी आएंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। जैसे एक से ज्यादा आंसर जहां आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर तो फिर आ जाएंगे, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करना और इनको अरेंज करना प्रॉपरली। नाउ 4 बॉयज ABCD सिट इन रो 1, तो ये रो 1 और ये रो 2, इतना कर ही लो पहले। 4 बॉयज ABCD सिट इन रो 1, 1 2 3 4, ये 4 लड़के हैं फेसिंग साउथ। ओके, तो ये जो बॉयज है इनकी फेसिंग इधर इस तरफ है, ऐसी। एंड 4 गर्ल्स PQRS आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, और ये जो गर्ल्स है इनकी फेसिंग इधर है नॉर्थ। नॉट इन द ऑर्डर गिवन, ठीक है। ईच डे ईच बॉय इन रो 1 इज सिटिंग अपोजिट टू 1 गर्ल इन रो 2, मतलब 4 लड़के और ये 4 लड़कियां बैठी हैं आमने सामने, ऐसा इनका है। ए सिट्स एट एन एंड सिट अपोजिट टू गर्ल हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। ओके, ए एक लड़का है जो किसी एक एंड पे बैठा है, तो या तो वो इस एंड पे है या इस एंड पे है, और जो वो लड़का जिस लड़की के सामने बैठा है वो पी के राइट में है, तो पी यहाँ होनी चाहिए, उसके राइट में वो लड़की है, तो पी तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो कोई पोजीशन ही खाली नहीं है। ये 4 है तो इधर तो कोई होगा नहीं, इसका मतलब पक्का हो गया कि वो जो बंदा ए बैठा है वो यहाँ है, और उसके सामने जो लड़की बैठी है वो किसके राइट में, इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो इसका मतलब पी आ गया, यहाँ पे वो लड़की है। इज दैट क्लियर? तो जो चीज यहाँ पर लिख पा रहे हैं वो अच्छे से लिख लो। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज अपोजिट टू एस, ठीक है।
B is to the immediate left of person who is opposite to S. S के सामने जो लड़का बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? कोई लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू एस। देखो एस के अपोजिट कोई, ये तो लड़की है, इसके सामने कोई लड़का ही बैठा होगा और उस लड़के के लेफ्ट में भी बैठा है, यही बोला है ना। तो इसका मतलब ये इस तरह की कुछ सिचुएशन है। लेफ्ट इसका इधर ही होगा, अपना राइट है तो इसका लेफ्ट होगा क्योंकि इसकी तो फेसिंग इस तरफ है, बॉयज की फेसिंग सारी इस तरफ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, आर इज नॉट एडजेसेंट टू पी। ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। आर पी के पड़ोस में नहीं है तो आर यहाँ नहीं हो सकता, आर यहाँ नहीं हो सकता, तो बचा ही कौन जगह? आर को यहाँ आना ही पड़ेगा। आर इज नॉट एडजेसेंट टू पी बट अपोजिट टू ए बॉय हु इज एडजेसेंट टू सी। आर जिस बॉय के सामने है वो किसके एडजेसेंट है? सी के, तो पक्का हो गया सी लड़का यहाँ आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं ये बना, इस तरह की चीज मैं कहाँ बना सकता हूँ? एस के सामने कोई लड़का और इधर एक बॉय बी, तो वो मैं यहाँ दे नहीं सकता, यहाँ ही दे पाऊंगा। तो एस यहाँ आ जाएगा मेरा, इसके सामने ये हो गया, इसके पास में यहाँ बी दे दो, तब यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो डी को यहाँ आना ही आना है। और पी आर एस हो गया तो क्यू बचा, उसको यहाँ आना ही आना है। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से अपनी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग मिस तो कर रहे होंगे ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस को, है ना। हम लोग भी बहुत मिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन क्लासेस को। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना ब्यूटीफुली, जितना अच्छे से आपको यहाँ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बगैर किसी एफर्ट्स के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर घर से बाहर निकले, उतना अच्छा मुझे नहीं लगता आपको क्लास में भी मिल सकता होगा। आप खुद सोच के देखो मैं कितना परसेंट सही बोल रहा हूँ गाइस। अब देखो यहाँ पर आपको हर चीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर चीज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। और कितना टाइम सेव हो रहा है आपका, कमिंग गोइंग, ये सारी चीजें, एडमिशन प्रोसीजर, बैच उस डेट से स्टार्ट होएगी। कुछ नहीं करना यार, बटन दबाओ, अपना लैपटॉप खोलो या मोबाइल खोलो, कहीं भी बैठे हो, कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो, है ना। अभी इतना बस ट्रेन ये सब अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ठीक है, आप कार में भी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना मोबाइल खोलो और लेक्चर को सुनते जाओ गाइज, आपका लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और हर बंदा अपनी तारीफ में कुछ बोलता है, मेरे को बोलना कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ ये कहना है कि आप जितने मैंने वीडियो खूब मेहनत करके आपके लिए तैयार किए हैं, एंड अबाउट टू कंप्लीट 100 सेंचुरी मेरी पूरी होने वाली है। आई थिंक 2 या 3 वीडियो ही और बचे होंगे अब इसके बाद। तो गाइज उसके अंदर ढेर सारे अच्छे क्वांट के, एलआर के, डीआई के टॉपिक्स हैं, तो आप उनको देखिएगा, आपका वैल्यू एडिशन करते चले जाइएगा गाइज। और मेरे को सिर्फ यही कहना है कि आप वीडियो देख करके ही कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने क्या डाला है। हाँ, हो सकता है आपको ऐसे थंबनेल और ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे पॉम्प एंड शो नहीं मिले आपको। कई बार ये रहता है ना कि अरे 10 मिनट में फोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, हो सकता है ये सब नहीं मिलेगा आपको, और अंदर दिखा तो कुछ नहीं मिलता कई बार। तो ये आपको अंदर जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, ये जो लेवल है एक्चुअल होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन का, वो यदि लेवल आपको मेरे चैनल पे मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए गाइस, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो। इस चीज के लिए आप मेरे मीडिएटर बनिएगा, यही मैं आपसे अपील करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।